Hi Ankush, good morning and welcome on Himpedia. Thank you, sir. Thank you for uh, inviting me for this interaction, sir. Okay, Ankush, you are my student and you are doing wonderful in your career. और आज का जो इंटरेक्शन है अंकुश वो हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन होगा। स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपकी जर्नी से उनको काफी सीखने को भी मिलेगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। और इसी पर्पस के लिए ये इंटरेक्टिव सेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो अंकुश, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और सबसे पहले मैं आपको आपकी जर्नी को शेयर करने के लिए बोलूंगा। आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और अपना पेरेंटल बैकग्राउंड भी हमारे साथ शेयर करें। आपके फादर आपके मदर क्या करते हैं और आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से लिया, स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका, और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करें। ओके सर। सर, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मेरे पेरेंट्स, सर, मेरे फादर एस एस सशस्त्र सीमा बल में इंस्पेक्टर हैं सर अभी। और मदर इज ए होगा सर। और एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल which is located in Hamirpur, sir. And after my plus two, I graduated mechanical engineering from IT. During my fourth year of BTech course, I joined my GATE coaching so that I can prepare for the GATE exam and try for PSUs or in the MTech admission course. So during 2014 GATE exam, I got and all India rank of 755 in GATE. And during that year, I could not get any placement in any of the PSU companies because I didn't get any offer from any PSU companies in that year. So I decided that I will appear for other exams of PSUs like Bharat Electronics Limited, and also prepare for the next year GATE exam. So in the year 2015, I again appeared for the GATE exam. Meanwhile, I also gave interviews of various PSU exams, and during this also, I also appeared in. There is a institute in Bombay, NITI Bombay. So I also got into that. There is a course in that, PGDMM, postgraduate diploma in manufacturing management. So I got AIR1 in that course, in that for that course. Or the process was the written test, group discussion, and interview. So during this course, during this year 2015, I could not get a good rank in the year 2015. Like my rank in 2014 was 755, but in 2015 it got slipped to 1300. So on the basis of rank of GATE 2014, I applied for MTech programs in various IITs and also gave interviews for IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Delhi, and IIT Guwahati, I think. So I got offers from 2 to 3 IITs, but I chose for IIT Delhi, and the stream I chose was production engineering. So during that course, I also appeared for the NMDC. There is a Mini Ratna company, NMDC Steel Limited, NSL. So I also appeared for the interview in that company, and I got selected as executive trainee, technical. But I chose to continue my MTech course during that period. And after um, I got admission in 2015, and in 2017 I got passed out from MTech production engineering from IIT Delhi. In 2017 I got campus placement in two companies. One was Tata Motors and another was Mercedes Benz Research and Development India. So I chose Tata Motors. During that period, I had also appeared for HPPSC, HP Public Service Commission, who has advertised an post for assistant engineer mechanical in HPPWD. So my interview was in the year 2016.
So the result got delayed, and in the meanwhile, the result of this exam also came out, and I got AIR 1 in on all the whole state. So I chose to join HPPWD. I joined Tata Motors, but after few days, I there was a call for joining in this HPPWD. So I came from Pune and joined HPPWD in Himachal Pradesh. This is the That base, was sir. in 16, huh? 17, sir, 2017, अगस्त 17। 2017। यस तो सर। आप पास आउट हुए हैं 14 में। 14 में, हाँ जी सर, बीटेक से ओके, पास आउट। सो 14 में आप पास आउट हुए और आपको निटी बॉम्बे में सिलेक्शन और आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन सेम ईयर में हुआ 15 में, अंकुश। हाँ जी सर, सेम ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी देखो निटी बॉम्बे जो आईएम मुंबई बन चुका है। अभी रिसेंटली इस साल उन्होंने उसको आईएम मुंबई बना दिया, निटी बॉम्बे ओके को। सर। और ये सारी ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं अंकुश। जैसे आपने बताया कि मैं आईआईटी दिल्ली में हुआ, फिर एनएमडीसी में आपने बताया, वो पब्लिक सेक्टर है एक। फिर हाँ जी निटी सर। बॉम्बे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो आईएम मुंबई बन गया, और मेरे को लगता है नेक्स्ट 4-5 साल में वो वन ऑफ द मेन आईएम्स बन जाएगा। यस सर। फिर आपने बताया आप टाटा मोटर्स में भी आपने ज्वाइन किया। तो यस मेरे सर। को एक बात बताइए, आपने टाटा मोटर्स ज्वाइन क्यों किया, एनएमडीसी ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो ड्यूरिंग जब मेरा कोर्स चल रहा था, एमटेक का कोर्स था, तो उस टाइम मुझे अप्रोक्सीमेट 3 या 4 मंथ्स हो गए थे जब तक मुझे ऑफर आया। 5 मंथ्स के करीब हो गए थे। तो ओके। एमटेक कोर्स मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे वहाँ का कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क ज़्यादा बेटर लगा। तो ओके। मैंने कॉल ली कि सर एनएमडीसी को मैं वो करके, उसके बजाय मैं एमटेक को एमटेक ही कौन? कंटिन्यू करूँ सर, अपनी एमटेक को ही। तो क्या आपका एमटेक हो चुका है या इनकम्प्लीट हो गया हुआ है? एमटेक कंप्लीट हो चुका है सर मेरा। अच्छा, अभी आप एमटेक कर चुके हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से। हाँ जी, जी सर, एमटेक बहुत अच्छा। कंप्लीट होने के बाद ही सर मेरी ज्वाइनिंग भी है यहाँ पर वेरी नाइस। एचपीपीडब्ल्यूडी में। तो ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको जॉब लगा, एंड आई थिंक द पोस्ट वाज असिस्टेंट इंजीनियर, अंकुश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर, असिस्टेंट इंजीनियर सर। इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यस, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी। तो ये जो आपको मिला है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स को? नो सर, ये अलग से टेस्ट एचपी पब्लिक अच्छा, इनका सर्विस अलग से कमीशन एग्जाम करवाता हुआ था। हम्म। है। हाँ जी सर। अच्छा, अब मैं इस तरफ आऊंगा, पहले कुछ जानेंगे बिकॉज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपने एक्सप्लोर की थी। मेरे को पहले ये बताइए अंकुश कि टिपिकली अगर एक स्टूडेंट आईआईटी से एमटेक करता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? टाटा मोटर्स के आपको प्लेसमेंट में मिला था, या कौन कौन सी और ऑप्शंस होती हैं एक स्टूडेंट के पास जो एमटेक करता है आईआईटी से? सर जो टॉप आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, उसमें जो मेन मेन स्ट्रीम्स एंड इवन सर जो एनर्जी साइंसेज एंड अनदर स्ट्रीम्स हैं, उनमें उनमें भी भी स्कोप है? प्लेसमेंट के लिए कंपनीज मैक्सिमम उनकी सर प्रेफरेंस रहती है कि एमटेक के स्टूडेंट्स को वो हम्म। हायर करें। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया। जब हम्म। हम प्लेसमेंट में बैठते थे, तो जो हम्म। कोर कंपनीज आती थी, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि कंसल्टेंसी एंड आईटी कंपनीज में जाएं, हम्म। बीटेक इन आईआईटीज, इन टॉप आईआईटीज। हम्म। एंड कोर कंपनीज जो हैं सर, वो प्रेफर करती हैं कि वो मास्टर्स का। एमटेक के स्टूडेंट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को वो ऑफर दें। तो यहाँ हम्म। पर सर ऑप्शन मैक्सिमम जो कोर कंपनीज हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनीज हैं सर, इवन ऑटोमोबाइल जो थर्मल सेक्टर से कंपनीज हैं सर, हम्म। एंड डिजाइन सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो मैक्सिमम कंपनीज सर प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं आईआईटीज में सर। एंड मैक्सिमम जो मेरे बैच में स्टूडेंट्स थे, इवन इन थर्मल, इवन प्रोडक्शन, इन डिजाइन और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज सर। और दूसरा ऑप्शन एक है, अगर हम कंटिन्यू विद इन द कोर्स वर्क हम कंटिन्यू करना चाहें कि पीएचडी के लिए, या तो हम उसी जो हमारे गाइड हैं उनसे बात करके उसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं सर, पीएचडी उसी इंस्टीट्यूट में। और अगर हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें तो एक, अगर एमटेक आईआईटी से अगर की है तो उसमें एक एज मिल जाता है, क्योंकि सर रिसर्च की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो एमटेक प्रोग्राम में मेजर प्रोजेक्ट हम लेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो पीएचडी में एक एडमिशन में एक एडवांटेज ये मिल जाता है। हम्म। एंड अगर हम जीआरई का स्कोर क्रैक कर दें तो फॉरेन में पीएचडी में भी
लेटर ऑफ रिसर्च, LOR और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हमने क्योंकि हमारे जो गाइड हैं वो ही हेल्प करेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने में सर और SOP बनाने में। तो एक सर ऑप्शन रिसर्च साइड का भी है, और कंपनी साइड जो कोर कंपनीज हैं उसमें प्लेसमेंट भी इजीली हो जाती है सर, और इवन तो मतलब एक विद गुड ऑप्शन पैक। बच्चों के पास ये भी है कि वो बीटेक के बाद एमटेक आईआईटीज वगैरह से जाके और वहां पे अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज उठा सकें। हाँ जी सर, अगर बीटेक में प्लेसमेंट अगर आपके जैसे मेरा UIT इंस्टीट्यूट था, जब हम पास आउट हुए थे तो बहुत ही कम कोर कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आई सर। वहाँ पे और किसी का अगर मन है सर कि कोर कंपनीज में ही जाना है, वो नहीं चाहते कि IT कंपनीज में या फिर कोई और कंपनीज में जाएं, तो वो दे कैन ट्राई फॉर सर एमटेक इन गुड इंस्टीट्यूट इन IIT दिल्ली। जो इवन सर जो IIT रोपड़, ऐसा जो न्यू इंस्टीट्यूट हैं, जो न्यू IITs बने हैं, वो भी काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, वहां भी कंपनीज जा रही हैं सर काफी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। और तो वो प्रेफर करते हैं सर एमटेक स्टूडेंट्स को सर। अच्छा अंकुश ये बताओ अभी जैसे आपने ये टाटा में जॉब किया, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वर्क देयर, कितना टाइम आप वहां पे रहे, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि टाटा मोटर्स का कैसा कल्चर है और आप कौन सी जगह पे पोस्टेड थे और किस तरह का जॉब प्रोफाइल है वो। सर मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ही मैंने वहां से लीव कर लिया था। तो हमारा अभी रोल असाइन ही हुआ था मुझे, इंजीनियरिंग सर्च सेंटर है ERC पुणे में, वहाँ हम्म। बॉडी एंड ट्रिम सेक्शन में मुझे ऑफर हुआ था, आगे अलाउट हुआ था असाइन रोल। तो वहाँ पर सर जो वर्क कल्चर है वो काफी टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जानी जाती है सर अपने वर्क कल्चर के लिए। ड्यूरिंग जितना भी मेरा स्टे रहा सर, मैं ट्रेनिंग के पीरियड में ही आ गया, तो ट्रेनिंग के पीरियड में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। मैं वहाँ नहीं जा पाया ERC पुणे जहाँ अलॉट होना, उससे पहले ही मैं वहाँ से लीव छोड़ दिया। छोड़ के वहाँ ज्वाइन कर लिया। बट हम्म। वर्क कल्चर वाइज सर टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द बेस्ट सर कंपनीज इन इंडिया। हम्म। एंड जो रिसर्च में जो मेरा प्रोफाइल था सर, वो रिसर्च एंड R&D टीम में था। इंजीनियरिंग सर्च सेंटर है सर पुणे में टाटा मोटर्स का। हम्म। तो उसमें सर हम जो भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसकी हम अ, उसका डिजाइनिंग सर, और उसमें एक टीम है सर जिसमें मेरे कलीग भी हैं पोस्टेड। उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज कोई भी सर एमिशन में आ रही है, या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट जो चाह रही है कि सर फ्यूल में आनी चाहिए, उस पर रिसर्च भी हो रही है। तो एक सर एक टाटा मोटर्स का ये वाला डिवीजन है, वो उसको हम अ, वैसे समझा जाता है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो जो प्योर काम है वो जॉब शॉप का है, वैसा नहीं है सर। R&D में काफी ज्यादा इसमें जो काम है वो एक तरह से रिसर्च बेस्ड काम है सर काफी। तो मतलब आप न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करते हो हाँ और जी सर। एनरिच्ड जॉब प्रोफाइल है। हाँ जी नहीं सर। अच्छा अंकुश अभी मैं आता हूँ आपकी फाइनल जो आपने फिर फाइनली ज्वाइन किया यहाँ पे एज असिस्टेंट इंजीनियर। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत कम मिलती है यस और सर। आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया। तो वेरी ब्रीफली शेयर विद अस कि कैसा ऑरा था वहां पे इंटरव्यू का, जो आप इंटरव्यू देने गए तो कैसा था लगा आपको वहां पे। सर मेरे इंटरव्यू के दौरान सर 5 पैनलिस्ट थे। उस टाइम चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन वो मेंबर थे सर उसमें। एक टेक्निकल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर्स थे, एक हमारे डिपार्टमेंट से मेंबर थे सर, एक प्रोफेसर थे शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए थे सर, वो थे, और बाकी सर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो थे। तो ड्यूरिंग जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस टेक्निकल साइड बहुत ही मेरा 20 मिनट्स का इंटरव्यू रहा। टेक्निकल इंटरव्यू वाज ओनली अबाउट 5 to 10 मिनट्स सर। बाकी उन्होंने जो जो चेयरमैन थे सर HP पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो उसमें क्या चेंज लाएंगे, व्हाट हम्म। विल यू ब्रिंग टू दिस, व्हाट विल यू ब्रिंग न्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू ज्वाइन। हम्म। तो हम्म। इट इट वाज मोर ऑन द HR साइड्स ऑफ द इंटरव्यू सर। उसमें काफी ज्यादा उन्होंने उस पर ग्रिल किया मुझे कि आप कुछ बताइए कि आप क्या नया लाएंगे, इसमें क्या टेक्नोलॉजी नया लाएंगे, आप IIT दिल्ली से पास आउट हैं, तो हम्म। आप कुछ उसमें मास्टर्स आपने कर रखी है, तो आप टेक्निकल साइड में उसमें क्या लाएंगे, और इवन ऑन द मैनेजरल साइड आप उसमें क्या लाएंगे, क्योंकि जो पोजीशन है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, उसमें दोनों एक्सपेक्ट आते हैं सर, एक टेक्निकल एक्सपेक्ट भी है, और ये जॉब प्रोफाइल एक तरह से मैनेजरल जॉब प्रोफाइल भी है। तो इस बेसिस पे मेरा इंटरव्यू सर लगभग 20 से 25 मिनट के करीब रहा।
और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि काफी सीनियर पैनलिस्ट थे, और उन्होंने जो हम मॉक इंटरव्यू सुनते हैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, तो वही फील हो रहा था कि उस तरह से इंटरव्यू का जो पेस है उस तरफ को ही जा रहा है, और उस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे भी गए सर। हम्म। अच्छा, अंकुश, अभी यहाँ पे अगर हिमाचल की मैं बात करूँ, आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रहे हैं, और बहुत सी कम पोजीशंस होती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स में। आप हमें ये बताएं कि एज फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स हिमाचल प्रदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ कहाँ पे जॉब ले सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। सर रिसेंट अभी करंटली तो सर डिपार्टमेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं वो पीडब्ल्यूडी है और आईपीएच है सर। ओके। जो प्योर सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जॉब्स हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड आईपीएच डिपार्टमेंट। ओके। और बाकी कुछ पोस्ट आगे आगे क्रिएट होंगी तो सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दो इन्होंने एंटिटीज बनाई हैं सर आगे, पीटीसीएल एंड पीसीएल, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर। उसमें भी कुछ मैकेनिकल की पोस्ट हैं वहाँ भी सर, एसटीएम मैकेनिकल की। तो ये ऑफर जो तीन डिपार्टमेंट सर, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनमें सर ऑप्शंस हैं सर। And what about roadways transport, roadways departments, HRTC and all? We don't have jobs in that, Ankush. उसमें भी सर वर्क्स मैनेजर के लिए जॉब्स निकलती हैं सर, डब्ल्यूएम के लिए वर्क्स मैनेजर के लिए बीच बीच में पोस्टें निकलती हैं सर। वो भी सर प्योर मैकेनिकल, उसमें भी मैकेनिकल अच्छा, इंजीनियर। मैं जैसे देखता हूँ कि कुछ जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, वो इवन बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करके एनटीपीसी, एनएचपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऐसी जॉब्स में भी जो जिनकी पोस्टिंग आपको हिमाचल में मिल जाती है। जैसे रिसेंटली अभी नापथा झाकड़ी में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का बहुत बड़ा प्लांट है, और उसी तरीके से कोल डैम वगैरह हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे भी पब्लिक सेक्टर की तरफ से स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो कुछ और आपको कुछ आइडिया है कि अगर कोई स्टूडेंट हिमाचल का है, देर सवेर वो हिमाचल में जॉब करना चाहता है, चाहे वो सेंट्रल पीएसयू से हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उसके लिए आ सकती हैं? एंड प्लस, क्योंकि आपने एमटेक भी कर रखा है, तो हम जानते हैं बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस गवर्नमेंट के भी हैं अदर देन एनआईटी एंड आईआईटी। तो और भी इस तरह की कौन कौन सी जॉब्स हैं जहां पे आपको लगता है मे बी आपके अपने फ्रेंड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के बाद हिमाचल में जहाँ सेटल होते हो? सर इसमें अगर एक ऑप्शन एमटेक के पहले ये भी था सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती थी सर मैकेनिकल ओके। की। यहाँ पर सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टांडा में है, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओके। टांडा में है, सुंदरनगर में है सर इंजीनियरिंग हम्म। कॉलेज। हम्म। वहां पर सर पहले जो एलिजिबिलिटी थी वो एमटेक एलिजिबिलिटी थी। अब अच्छा। इन्होंने सर रिसेंटली पीएचडी में इसको वो चेंज कर दिया है, वरना अभी तक ऑप्शन एमटेक स्टूडेंट्स वहां भी सर अप्लाई कर सकते थे असिस्टेंट ओके। प्रोफेसर। और जैसे आपने सर सेंट्रल पीएसयूज के बारे में बताया, एसजेवीएन के बारे में, एसजेवीएन की सर पीछे पोस्ट भी निकली थी 2000 आई थिंक सर 20 में निकली थी, 19 या 20 में। और उसकी मैक्सिमम पोस्टिंग अपार्ट फ्रॉम हिमाचल नेपाल में इनके प्रोजेक्ट हैं सर, नेपाल भूटान में। और मैक्सिमम उसके अलावा सर हिमाचल में ही इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट है, नाथपा जाखड़ी में है सर, धौलासिद्ध में एक प्रोजेक्ट बन रहा है सर। तो उसमें क्योंकि इनका सर हेडक्वार्टर्स भी शिमला में है एसजेवीएन का सर, तो मैक्सिमम वहाँ हेडक्वार्टर पोस्टिंग भी मिल जाएगी, जो हिमाचल के चाहते हैं कि हिमाचल में ही उनको पोस्टिंग मिले सर। तो सेंट्रल पीएसयू के हिसाब से अगर एसजीवन में आगे आगे वैकेंसीज आनी है, जैसे ड्यू सर अब 2-3 साल के बाद आती हैं सर वैकेंसीज, एसजीवन में सर ऑप्शंस है। और भाखड़ा बीबीएमबी है सर, बीबीएमबी का सर पंडोह में भी है। बीबीएमबी में अगर पोस्टें निकले तो सर बीबीएमबी में ऑप्शंस हैं। ओके। और सेंट्रल पीएसयू के हिसाब से, और हिमाचल में सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया सर, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर टीचिंग एमटेक में भी। एलिजिबिलिटी, अभी मैंने सर चेक किया नहीं, लास्ट टाइम तक तो एमटेक एलिजिबिलिटी थी। अगर एमटेक सर करना चाहें, और कॉलेजेस की बात रहेगी सर, एमटेक के लिए एनआईटी एनआईटी है ऑप्शन सर एक एमटेक के लिए, जहां से अप्लाई करके वो कर सकते हैं। बाकी सर गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ से, जैसे सर ये इनमें मेरे को कोर्सेज का आइडिया है नहीं सर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सुंदरनगर या टांडा में कि ये इन्होंने कोर्सेज एमटेक के स्टार्ट किए हैं, बट शायद होंगे बट सर। आईआईटी मंडी बहुत से कोर्सेज लॉन्च किए हैं आईआईटी मंडी ने अब।
और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है हिमाचल के स्टूडेंट्स हाँ के जी लिए। सर, आईआईटी मंडी सर वो वन ऑफ द बेस्ट है सर इंस्टीट्यूट हिमाचल में, अगर एमटेक और पीएचडी करना चाहते हैं सर आगे हायर राइट। कोर्सेज। अच्छा अंकुश, नाउ लास्ट माय क्वेश्चन टू यू इज रिलेटेड टू योर ओन जॉब। जो आप असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंटली कहाँ पे पोस्टेड है और किस तरह की जॉब है ये? सर मैं प्रेजेंटली धर्मशाला में पोस्टेड हूँ, और बेसिकली जो हराइकी है सर मैकेनिकल की एचपी पीडब्ल्यूडी में, हमारे पीडब्ल्यूडी में टॉप टू बॉटम सर सर्कल, ऊपर चीफ इंजीनियर होते हैं सर जो जोन वाइज सारा वर्क काम देखते हैं सर। उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं जो सर्कल लेवल पे सर उनके अंडर सर्कल का चार्ज होता है। उसके आगे सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, डिवीजन का चार्ज देखते हैं। एंड देन असिस्टेंट इंजीनियर जो सब डिवीजन का चार्ज देखते हैं सर। तो सर मैकेनिकल का देखा जाए तो हमारे पीडब्ल्यूडी में सर 3 पोस्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग की है, एससी की पोस्ट है सर। और उसमें सर धर्मशाला सर्कल है एंड शिमला सर्कल है सर। एंड हमारे सर फील्ड में 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 5 जिसको सर यहाँ पर एक्सन बोलते हैं सर। एक्सीएल, हाँ। हिमाचल में सर एक्सन बोलते हैं। 5 हम्म, एक्सन है और सर 28 पोस्ट हैं सर एसडीओज की। तो हम्म, हमारा सर जो जॉब प्रोफाइल है मेनली जो बिल्डिंग एंड रोड्स डिविजन है हमारे सर पीडब्ल्यूडी के, जो हम्म, रोड्स एंड बिल्डिंग को कैटर करते हैं। मेनली रोड कनेक्टिविटी के लिए मशीनरी यूज होती है काफी सर। हम्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकेवेटर कम लोडर्स यूज होते हैं सर, हम्म, इंस्पेक्शन व्हीकल्स यूज होते हैं, रोड रोलर्स यूज होते हैं, एयर कंप्रेसर यूज होते हैं। हम्म, उसमें जो भी सर हमारा रूटीन मेंटेनेंस है उसके लिए हमारे पास मैकेनिक्स हैं, हमारे अंडर जेईज हैं सर। तो हम हम्म, उनकी सुपरविजन करते हैं सर। हम्म, और अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक एचपी एरियल रोपवे एक्ट है 1968 का। हम्म, उस उस एक्ट के तहत सर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कंसर्न, वो रोपवे इंस्पेक्टर है सर। हम्म, उस रो उस फॉर दैट पोस्ट सर उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें हम्म, वो जो भी रोपवे सर नए बन रहे हैं हम्म, उसकी वो रूटीन इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है सर कंस्ट्रक्शन फेज से ही, इनिशियल हम्म, कंस्ट्रक्शन फेज से, हम्म, जब तक वो सर रोपवे लग ना जाए और थ्रू आउट हम्म, इट्स ऑपरेशन सर। सो हम्म, एक ये नया जिसमें सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्रिक्वेंट जाते हैं इंस्पेक्शन पे, क्वार्टरली इंस्पेक्शन होती है हर 3 मंथ्स में। तो हम्म, उनके साथ जो कंसर्न्ड असिस्टेंट इंजीनियर है वो भी साथ में सर इंस्पेक्शन में सीखने को मिलता है नई चीजें सर। हम्म, जैसे यहाँ धर्मशाला में ही सर टाटा ग्रुप का ही, टाटा प्रोजेक्ट्स का, टाटा हम्म, रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ट्रिल है सर इनकी एक कंपनी। उन्होंने सर धर्मशाला रोपवे बनाया है। हम्म, कि क्वार्टरली इंस्पेक्शन पे मैं सर के साथ फ्रिक्वेंटली हम्म, जाता था, साथ में कंपनी हम्म, करता था। और वहां हम्म, पर सर वो जो उन्होंने रोपवे लगाया है वो लाइटनर रोपवे ने लगाया है हम्म, सर। वो हम्म, बाहर की सर फॉरेन की कंपनी है, और उन्होंने हम्म, सीईएन स्टैंडर्ड्स हैं सर, सेंटर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बेसिस पे वो रोपवे लगाया है। तो हम्म, एक सर ये जॉब प्रोफाइल रोपवे वाला जो फील्ड है, जैसे आपने सर सुना ही होगा कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ ने कुछ रोपवेज हिमाचल के लिए सर सैंक्शन किए हैं। एक्शन किए हैं सर, जिसमें फार फ्लंग एरियाज जैसे कि हम्म, सर चूड़धार हो गया, और भी कुछ हम्म, एरियाज हैं जहां पर पीक जैसे पीक स्नो सीजन में सर जा नहीं सकता कोई भी। वहां हम्म, पर जैसे सर बाहर फॉरेन कंट्रीज में जैसे स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं सर, इवन ड्यूरिंग विंटर वहां पर टूरिस्ट जाते हैं। टूरिज्म होता है। हाँ रोड, वहाँ कनेक्टिविटी के लिए सर उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू रोबेस। किए। तो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट लगेंगे सर, वैसे हम्म, वैसे वो उनकी भी जो इंस्पेक्शन है वो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल है उनके पास आएगी सर। तो एक हम्म, जॉब प्रोफाइल, ये वाला जॉब प्रोफाइल काफी यूनिक है सर, हम्म। अपार्ट फ्रॉम रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड व्हीकल्स सर। अच्छा, तो आप कितने साल में अंकुश एक्सीएन बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? कितना टाइम लगता है प्रमोशंस में? प्रमोशंस में सर मिनिमम 8 years कंटिन्यूअस रेगुलर सर्विस चाहिए सर एज असिस्टेंट इंजीनियर। एंड देन आफ्टर जब वैकेंसी क्रिएट होगी उस तो हिसाब से पैनल में सर तो मिनिमम सर 8 years टाइम लगता है। और अगर डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर लग रहे हैं तो 10 से 13 साल के बीच में सर, 10 to 13 बन years के जाते बीच हो में। आप? हाँ जी सर बन मतलब जाते ऑन हैं। एन एवरेज मान सकते हैं 11 12 साल में बन जाता है एक्सीएन, हाँ जी जो सर, असिस्टेंट इंजीनियर थे। असिस्टेंट इंजीनियर सर। चलिए, वंडरफुल अंकुश, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। और अपने स्टेट में जॉब कर रहे हैं, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। और हिमाचल प्रदेश तो वैसे पैराडाइज है।
So every person from Himachal wants to come back to Himachal and serve in that particular state. So Yes. let me thank you once again, Ankush, for your time. And I'm very sure ये जो आपने सारी बातें बताई, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक इंफॉर्मेटिव होंगी सेशन, और उनको इंस्पायरिंग सेशन भी होगा. And I'm very sure they will make their decision accordingly. So thanks a lot once again, Ankush, sparing your time on this Sunday morning. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.